I'm still very optimistic on behalf of the Indian economy. We do expect the Indian economy to grow 8% this year. We think in the coming decade we can be speaking about a 10 trillion US dollar economy, at least in the coming 2 decades. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक जल्द ही भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छुएगी। India is $10 trillion इकोनॉमी इन मेकिंग, ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। एंड इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। ये भी पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि इस वक्त 24th एडिशन स्टार्ट हो चुका है स्विट्जरलैंड डावोस में। বন্ধুরা, এই সময় ভারতের অর্থনীতির জন্য একটা ভালো খবর সামনে বেরিয়ে আসছে। আর এই রকমের পরিস্থিতি যদি ভারতের সাথে থাকে তাহলে বিশ্বের সবথেকে দ্রুতগতির সাথে এগিয়ে যাওয়া ভারতের অর্থনীতি হবে। আর সামনের 1 দশকের মধ্যে আমরা 10 ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে চলে যাব। বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতি তো হবেই হবে, সাথে আমরা 10 ট্রিলিয়নের অর্থনীতি সম্পন্ন দেশ হয়ে যাব। এরপরে ভারত একটা ইকোনমিক সুপার পাওয়ার হয়ে যাবে। আর এটা আমি বলছি না, বলছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট নিজেই জানিয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা একদম সঠিক শুনেছেন, আমাদের যে ইকোনমি সেটি 10 ট্রিলিয়ন হয়ে যাবে 1 দশকের মধ্যে। মানে যখন ভারত একদিকে ইকোনমিক সুপার পাওয়ার হতে চলেছে, এমতো অবস্থায় আমাদের পড়শি পাকিস্তানের তো জ্বলন জ্বলবেই। যদি পাকিস্তানের ভিতরে কিছু পড়াশোনা জানা ব্যক্তি আছে যারা পাকিস্তানের সরকারের কর্মকাণ্ডকে ভালোভাবে দেখছে, যারা আজকের দিনে ভারতের ইকোনমি মডেলের অনেক সুনামও করে, কিন্তু যে সমস্ত জাহিল পাকিস্তানি আছে তারা ভারতের ইকোনমি সুপার পাওয়ারকে দেখে তারা চায় ভারতে হামলা করতে, কারণ তারা কখনোই চায় না ভারতের উন্নতি হোক, তারা সর্বদা ভারতের ক্ষতি চায়। কিন্তু পাকিস্তানের আবাম থেকে শুরু করে পাকিস্তানের নেতারা 1-2 বিলিয়ন ডলারের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশের হাত পা ধরে ভিক্ষা থলে নিয়ে হাত পা পাতে। তো সেখানে আবার আমাদের ভারত সুপার পাওয়ার হচ্ছে। তো বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়া কি বলে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। I'm still very optimistic on behalf of the Indian economy. We do expect the Indian economy to grow 8% this year. We think in the coming decade we can be speaking about a 10 trillion US dollar economy, at least in the coming 2 decades. So I also spoke about the snowball effect, and it's easier to understand when here you start to roll the small snowball on the top of one of these hills and it starts to move down. It increases the speed and it gets bigger and bigger. This is still what I do expect also moving forward in India. It's a economic success story, and I still believe in G3 and the fact that India in the future will be a player, maybe different, but on the same level as the US, China and India. सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त जरा बात की लेते हैं कि एक बड़ा फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि स्टार्ट हो चुका है, इसका 24th एडिशन, जिसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल हो रहे हैं और इसके कुछ थीम्स भी मौजूद हैं और तमाम कंट्रीज अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंडे, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं, उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रही है। आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त
आने वाला है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब तीसरी भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये है कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है, वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 डे जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है। वो इसी चीज पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दे। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखें, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान के अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों में मैनिपुलेट कैसे कर दिए, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है, पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना।